subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show. And as usual, we have very special guest today too. And she's none other than Yana Mir. She's from Kashmir. She was born in Kashmir. She was raised half in Mumbai and half in Kashmir. Definitely, she's the first Muslim woman working as a journalist. She's the vice president of J&K Youth Society and Kashmiri Youth Wave, and she's an anchor for Bharat Express. So, Yana, welcome to the Nupur Tiwari Show. Thank you so much, Nupur, for having me on your show. Thank you so much for making time. And how is the weather in Kashmir? कैसा चल रहा है? कश्मीर का weather कैसा है? कश्मीर में तो I can speak in Hindi, right? हाँ जी, please. हमारे जो दर्शक होंगे कश्मीर में तो हिंदी बोलने वाले होंगे. Awesome. So कश्मीर में तो चिलाई कलान शुरू हो गया. It's very cold, very chilly, and unfortunately, the city that I am from, Srinagar, there has been no snow yet. It's only been raining and very, very cold. So what snow does is, snow is a conductor of heat. So when it snows, the shivering reduces a bit, the feeling of chill reduces a bit, but it's not snowing. So it's unbearably cold right now, very harsh in Srinagar. तो सब लोग इंतजार right कर now रहे हैं in स्नो Delhi. के लिए. सब लोग स्नो के लिए बिल्कुल इंतजार it कर is, रहे हैं. हाँ, श्रीनगर वाले तो स्नो का इंतजार कर रहे हैं. वैसे इंटीरियर्स में स्नो शुरू हो गया है. It is on and off happening in the mountains and all that, in Sonmarg and Gulmarg and all these places. It is snowing, but Srinagar people are still waiting कि कब snow हो, because that will bring out the chilly effect a bit. Yeah. Of course. और आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दोनों. मुझे लगता है कि 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा. दो कन्या जो दो इंशाल्लाह. डेफिनेटली. सो याना, जैसे आपने बताया कि आपका बचपन थोड़ा सा कश्मीर में, थोड़ा सा मुंबई में हुआ, तो कश्मीर के बचपन कैसा था? मतलब कश्मीर तब तो 370 था, तो वो कैसा था आपका बचपन? The Kashmir has always been a disturbed place. Okay, this is the only phase of Kashmir that I know of which is not disturbed. Even after 2019, 2 साल तक तो disturbance चला, because first the people were insecure, then then COVID pandemic hit the country, including Kashmir. So all that disturbance was there up until 2021, I would say, and then 2021 के बाद is the only time that I've actually seen peace in Kashmir. So you can imagine, like, peace as in there is no afra tafri, there is no hartal, there is no schools and colleges shutting down because of hartal, there is no stone pelting. Nobody does these kind of things anymore. It's looked down upon, in fact. So, like when we were younger, it was something like heroes, something which heroes do. Pick up the stone and go pelt it at the security forces. That is a heroic thing to do. Now तो it's looked down आपने upon. Now देखा it's होगा like, ऐसे? मतलब मैं आपको obviously इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने बोला कि हीरोइक एक्ट. I was sheltered. आपने, मतलब आप जब चलते हुए थे Yes, या किसी ने आप ऐसे आर्मी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते हुए आपने खुद देखा है? आई वुड से मुझे याद, हाँ, देखा तो है. वैसे अफरा तफरी बहुत देखी है, बट दैट एग्जैक्ट थिंग कि जिस किसी को स्टोन लग रहा है वो तो नहीं देखी. अफरा तफरी देखी है जहाँ लोग भीड़ में जमा होकर ये ना नारे लगा रहे हैं, ये वो सब तो बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है. एंड देन कर्फ्यू का टाइम है, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, लाइक एवरीवन स्केयर्ड, नहीं बाहर मत जाना, कर्फ्यू लगा है, वो वाला, वो एक फियरफुल लाइफ थी वहां पर. I could feel it. I was always sheltered, of course, but उस sheltering में भी मैंने वो fear देखा है अपने बड़ों में. It was very, and like growing up and when we were in college and all, I was already out of the valley by then. I will tell you कि बहुत सारे Muslims भी वैली से निकल गए जब वो एक्सोडस हुआ था पंडित्स का. बहुत सारे Muslims भी निकले हैं. बिकॉज उनको लगा था कि कश्मीर में कभी हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं रह सकता. डर डर के कब तक रहेगा ना इंसान. सो बहुत सारे मुस्लिम्स एंड मे बी वी वर वन ऑफ दोस फैमिलीज जो निकले. एंड मुझे पता है कि निकलना वहां से हैज हैपेंड. एंड देन इट इज सो आयरॉनिकल कि फिर महाराष्ट्र में, फिर कॉलेज में, देन आई मेट कश्मीरी हिंदूज जो वहां से निकले थे. एंड
देन दे यूज्ड टू से स्टोरीज की हमारे दादा के साथ ऐसे हुआ था, हमारे पापा के साथ ऐसे हुआ था, कश्मीरी मुस्लिम्स ने हमारे साथ ऐसे किया। ये सब हमने सुना। कई जगहों पे हमें बोलने से डर लगता था कि वी आर कश्मीरी मुस्लिम, बिकॉज वी डिड नॉट वांट पीपल टू जज अस। तो बहुत हम्म ऐसी चीजें हमने फेस की वहां से हम्म निकलने के हम्म। बाद भी। तो थिंग्स आर या नॉट ना इजी फॉर कश्मीरी आज, मुस्लिम्स, क्योंकि हाँ जी, या ना आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 को लेके इतना बड़ा फैसला सुना दिया, तो बहुत सारे लोग मैं देख सकती हूँ बहुत खुश नहीं है इस फैसले के साथ। आप इसको किस तरह से लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अब लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना था वो 4 साल पहले हो गया। 370 तो 4 साल पहले हट गया था हम्म ना, एब्रोगेशन हो हम्म गया था। ये हम्म सिर्फ कोर्ट का फैसला था। कोर्ट ने हम्म सबूतों को देखकर तय किया कि वो हटना ठीक था कि नहीं था। तो हम्म ये कोर्ट और उन पेटिशनर्स के बीच में था, जो लोग इसके हटने से खुश नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ 23 शायद पेटिशनर थे, मुझे जितना पता है। 23 हम्म। पेटिशनर्स में से कई सारों ने बीच में ही अपनी पेटिशन हटा दी, क्योंकि पेटिशंस अच्छा। इन्होंने तब डाली थी 4 साल पहले। लेकिन हम्म जब 2 साल के बाद दे सॉ कि थिंग्स आर एक्चुअली इंप्रूविंग, सिक्योरिटी सिचुएशन इज इंप्रूविंग, टूरिज्म इज इंप्रूविंग, द प्रोजेक्ट्स व्हिच हैड बीन प्रॉमिस्ड वो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हो गए थे, लेकिन दे आर स्टार्टिंग, दे आर बिगिनिंग टू स्टार्ट। हम्म थोड़े थोड़े ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता गया। बहुत हम्म सारी चीजें चेंज होती गई। आई विल टेल यू अबाउट देम इन द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू। तो जब उन्होंने ये सब देखा कि women are coming forward, women have a newfound freedom now, they have a right to inheritance which is equivalent to men, they are even doing MSME registrations, becoming self-employed, इतना सब कुछ देखने के बाद उनमें से कुछ ऐसे पेटिशनर्स हैं जिनको शर्म आ गई कि हमने पेटिशन दिया ही क्यों। फिर उन्होंने तो हम्म पेटिशन ही विड्रॉ कर दिया। ये पहला साइन है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। फिर सुप्रीम हम्म कोर्ट इज नेवर अ बायस्ड एंटिटी, इट्स नॉट अ बायस्ड इंस्टीट्यूशन, एज यू नो। तो हम्म उन्होंने हर एक चीज को मद्देनजर रख के दे फर्स्ट सॉ कि जिस तरीके से हटाया गया, क्या वो अवैध है या क्या वो ठीक है। फिर देन दे नोटिस्ड कि हटाने के बाद कुछ मैलाफाइड तो नहीं हुआ, लोगों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ आवाम के साथ, वो भी उन्होंने देखा। तो हर एक चीज को उन्होंने माप तोल के देखा, एंड देन दे केम आउट विद द वर्डिक्ट कि ठीक हुआ, जो हटाया वो ठीक किया। तो अब लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने भी देखा होगा कुछ पॉलिटिशियंस, जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस इसको बहुत ही इसके अगेंस्ट में बोल रहा है कि हमारे ऊपर जाती हो रहा है 370 को उठा के। और इवन मेनलैंड के कुछ पॉलिटिशियन भी इसको ठीक से नहीं ले रहे हैं। तो आपको आपको मतलब क्यों क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है कश्मीर में, तो ये लोग पहली अगेंस्ट में बात क्यों बोल रहे हैं? पहली बात मैं आपको बोल दूं कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेल यू, दे डोंट रिप्रेजेंट अस। बिकॉज जब ये लोग इलेक्शन में खड़े होते थे, कितने लोग आते थे वोट करने के लिए? हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट कितने लोग जब महबूबा मुफ्ती इलेक्शन में खड़ी होती थी कंटेस्ट करने के लिए, कितने लोग आते थे बाहर वोट करने के लिए? 3 या 4% लोग। सेम टू सेम अब्दुल्ला जब ये डिफॉल्ट से बन रहे हैं। एवरी इलेक्शन, पासिंग इलेक्शन ईयर में ये डिफॉल्ट से बन जाते हैं। We are not voting them, they are not representing us, they are claiming that they are representing। हाँ, एक जमाना था जब हमारी कम्युनिटी को उन पे भरोसा था। they couldn't do anything, they couldn't do anything to save the Kashmiri Pandits, they couldn't do anything to save the reputation of the Kashmiri Muslims, they could not do anything for our safety and security, to boost industries or tourism or anything in our state। they could not do, they were failures। तो उसकी वजह से लोगों का उन पर से भरोसा हट गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था अब किस तरफ जाएं। दैट वाज द अफरा तफरी बहुत सालों से थी, नो डाउट अबाउट इट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। यू सी 370 के होने से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, होने या ना होने से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सियासतदानों को फर्क पड़ता है, बिकॉज 370 की आड़ में वो करप्शन करते थे, इजीली करते थे, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत नहीं होती थी फंड्स को लेके। तो इसलिए दे हम्म। वांट द 370 बैक, क्योंकि उनकी रेलेवेंस उसकी वजह से खत्म हो गई है, उसके एब्रोगेशन से। जी। अच्छा, तो इसमें जो पाकिस्तान का प्रभाव था कश्मीर के ऊपर, जो हम सबको पता है कितना था। तो आप कितना मतलब कश्मीर के यूथ जो है वो समझ रहे हैं कि उन्होंने उसके ब्रेन वॉश किए या जो भी उन्होंने किया, स्टोन पेल्टिंग, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मैं बोलूंगी। क्या वो लोग समझ रहे हैं कि दे मेड ए मिस्टेक? दिस इज वन, एंड सेकेंडली, अभी पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस
पीपल के माइंड में हम्म। कितना है कश्मीर में? See, I'll tell you something, Nupur. कल्चरली में भी पाकिस्तान को लेके एक बॉन्डिंग है कश्मीरीज की. Now, I don't know how true it is, but we are having a very like candid, casual one-to-one conversation. तो मैं आपको पूछूंगी, आप बंगाली हो, क्या आपकी मदर या कोई भी बांग्लादेशी फिल्में या बांग्लादेशी सीरियल या बांग्लादेशी म्यूजिक सुनती है, देखती है? मैं तो या नहीं सोनो? देखती हूँ। आप नहीं देखते, आप तो जापानीज देखते होंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर. तो उसी नहीं, तरह से हाँ आप बोलो। हाँ इसी तरह से क्या है कि कश्मीरीज आर बॉन्डेड विद पाकिस्तान इन द टर्म्स ऑफ कल्चर, यू कैन से. एक हम मजहब है, यू नो, दे आर आल्सो मेजॉरिटी मुस्लिम्स. कश्मीर इज आल्सो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्या देश से ज्यादा हाँ, मजहब ज्यादा इम्पोर्टेंट है या देश ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, कश्मीरीज आर वेरी नेशनलिस्ट, लेट मी टेल यू, वेरी नेशनलिस्ट. वो कुछ हैंडफुल ऑफ लोग थे जो बहक गए सैयद अली शाह जैसे लोगों की, सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोगों की बातों में आकर बहक गए, JKLF की बातों में आके बहक गए. लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहां से सिर्फ टेररिज्म आ रहा है, वहां से कोई कश्मीरियों के लिए भलाई नहीं आ रही, जब इन्होंने देखा. एंड मैं आपको बता दूं, कितने सारे मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर से गए वहां ट्रेनिंग करने के लिए. वहां उनको ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे नुपुर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं. सडनली उनके अंदर कुछ ये हो गया, नहीं यार, देश से गद्दारी हम नहीं कर पा रहे. अच्छा, आपको पता है कितने कश्मीरी नौजवान आर्मी ज्वाइन करके उन्होंने देश के लिए जान दे दी? उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया क्योंकि वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए. और ऐसे भी आपने देखा होगा, राइफलमैन औरंगजेब के पेरेंट्स का देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमारा एक बेटा शहीद हुआ तो क्या, हमारे दो और बेटे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे. और बड़े प्राउडली वो उनको आर्मी ज्वाइन करा. ठीक है ना. कश्मीरियों को मुखबिर बोल के मारा गया जस्ट बिकॉज बहुत सारे कश्मीरियों ने ये सोचा वहां पे मिलिटेंट छुपा है, मैं फोन करके आर्मी को बताऊंगा. ठीक है ना. तो वो अगर बेचारा कश्मीरी, अगर मैं बताऊं ना, अगर वो मिलिटेंट ना भी है, अगर वो इंडियन आर्मी की गोली से नहीं मरा या पुलिस की गोली से नहीं मरा, तो वो मिलिटेंट की गोली से जरूर मरा है, जस्ट बिकॉज उसको मुखबिर टैग किया गया, क्योंकि उसने मुखबिरी की, उसने इंडियन आर्मी को बताया. मैं आपको बताऊं, अगर कश्मीरी नेशनलिस्ट नहीं होते तो आज कश्मीर को सीरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता. आफ्टर ऑल, इंडियन आर्मी ने जो भी वहां पे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, मिलिटेंट्स को पकड़ा है, मारा है, वो वहां के लोकल्स की हेल्प से ही किया है. ये चीज आपको समझनी होगी. तो हमारे लिए डेफिनेटली कश्मीरियों के लिए देश सबसे बड़ा है, चाहे हम वो ओपनली बोले या माने या नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा है. द प्रूफ इज, कितने सारे मिलिटेंट्स आके सरेंडर हो गए, खुद से, पकड़े भी नहीं गए, खुद से सरेंडर हो गए. आज वो तिरंगा उठाते फिर रहे. मैंने कई ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी किया है. तो उनसे नहीं हो पाया, उनको ट्रेनिंग मिली, पैसे मिले, सब मिले वहां पे, बट उन्होंने कहा नहीं, नहीं हो पाया. वो आके सरेंडर हो गए, इकवान बन गए, आर्मी को हेल्प करने लगे. तो ये सारी चीजें हुई है हमारे पास में, और तो कश्मीरी मुस्लिम्स आप को बोल इन गुड रही है लाइफ कि दिखाना यूथ जरूरी है. यूथ अभी समझ गए कि उसका देश अभी क्या तो है? अच्छी तरह से, क्योंकि क्योंकि इन्हीं के बच्चे, ये जो मैं कह रही हूँ, ये उस जनरेशन के लोग थे, 80s हम्म के 90s. अब उनके जो बच्चे हैं, हम्म वो तो डेफिनेटली दे आर प्रो इंडियंस, क्योंकि ज्यादातर इन्होंने अपने बच्चों को स्टेट से बाहर भेजा पढ़ने के लिए. जब वो स्टेट हम्म से बाहर गए, दूसरे स्टेट्स में गए, इंडिया के स्टेट्स में, वहां पे देखा कि यार यहाँ तो लोग राजी खुशी जी रहे, इज्जत से जी रहे हैं, ना कोई किसी मुस्लिम पे उंगली उठा रहा है, ना कोई हिंदू मुस्लिम आपस में जी रहे हैं. ये सारी सिर्फ पॉलिटिकल चीजें हैं जो बोली जाती हैं. जब हम्म उन्होंने देखा कि किसी को ना नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, ना रोजे रखने से रोका जा रहा है, और सब इतना प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तो व्हेन दे सॉ ऑल दीज थिंग्स, देन दे सॉ कि यार हम इस कंट्री के हैं, इस खूबसूरत कंट्री के, जिसमें इतना हिस्ट्री है, जिसमें जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, कि आज मतलब पूरी दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो चांद मोदी जी के साथ चांद पे फोटो जा रहा खिंचाने है, के लिए, चांद पे मोदी जा जी रहा के है। साथ फोटो के लिए वो इतने उतावले होते हैं कि मोदी जी के साथ एक फोटो हो जाए. हम उस कंट्री के हैं जो चांद पे जा रहा है. एग्जैक्टली. तो जब वो एग्जैक्टली। देखते हैं कि हम कितना भड़काए और बरगलाने की कोशिश की गई, तो ऑब्वियसली, और फिर यही बच्चे वापस जाते हैं स्टेट में, जैसे मेरे जैसे लोग, और वहां जाके लोगों को बोलने बताने की कोशिश करते हैं चेंज. तो ऐसे करके नाउ थिंग्स आर चेंज्ड. अब हर कोई वहां तिरंगा उठाता है. जहां एक जमाने में पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाता था लाल चौक में, आज हर कोई वहां पे तिरंगा उठा रहा है. सो इट्स ऑल चेंज नाउ. या वेरी वेरी नाइस टू हियर दैट। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आपने बोला मजहब एंड हिस्ट्री,
तो मजहब एंड हिस्ट्री, अगर कोई मजहब पाकिस्तान से कल्चरली कश्मीरियों को अगर थोड़ा सा क्लोज ला सकता है, तो उसका हिस्ट्री तो उसको और भी भारत के साथ क्लोज करेंगे, क्योंकि आप लोग जैसे अभी आप लोग मुस्लिम हो, लेकिन आपके किसी जनरेशन वही कश्मीर के हाँ हिंदूज थे, वही जनरेशन कश्मीर के आपके पंडित थे जिन्होंने वेद लिखा, जिन्होंने शंकराचार्य का मंदिर निर्माण किए। तो वो हिस्ट्री भी तो जानना चाहिए कश्मीरी को, उस वो मैं तो हिस्ट्री से भी आपको तो ये भी थोड़ा-सा। बताऊंगी, एब्सोल्युटली वो जानना जरूरी है। और उसके लिए जहां तक मुझे पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंजेस भी की जा रही हैं एकेडमिक्स में। जेके बोस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जेके बोर्ड की, एजुकेशन बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स वगैरह में कुछ चेंजेस की जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को ये पता रहे कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि कश्मीरियों को बोला गया था राज तरंगिनी फेक, ये फेक, वो फेक, ललित आदित्य के बारे में किसी को नहीं पता। सन ऑफ द सॉइल जो किंग था वो तीन पावर्स को एक साथ लड़ रहा था, उसने कश्मीर को बचा के रखा, तिब्बत से बचाया, रूस से बचाया, अरब इन्वेजन से बचाया। अगर वो नहीं होता तो आज कश्मीर में कोई कश्मीरी नहीं बोल रहा होता, आज कश्मीर में लोग तिब्बती बोल रहे होते। ये तो हालत थी, तीन तीन साइड से जंग लड़ रहा था और जीत रहा था वो। ये ऐसा हीरो है कश्मीर का, लेकिन कश्मीरियों को पता ही नहीं कि हमारा एक कोई राजा था ललित आदित्य नाम का। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मदरसा कल्चर हैड गॉटन ओवर देम। लेकिन अगेन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स उस जमाने में अच्छी होती, टिकाऊ होती, लोग वहां जा रहे होते पढ़ने लिखने के लिए, अपने बच्चों को भेज रहे होते, तो बच्चे जाना करना मना बोल के बड़े होते, उनको सारा कुछ पता होता अपनी हिस्ट्री का। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ऐसी थी कि उन बच्चों को उनको भेजना पड़ा। क्योंकि मुझे एक चीज पता, हर कश्मीरी माँ बाप पहले उनका प्रेफरेंस होता है कि यार हमारा बच्चा आर्मी स्कूल में जाए, लेकिन आर्मी स्कूल में ओपनिंग्स कम होती है सिविलियन बच्चों के लिए। अब वो कहाँ भेजेंगे? गवर्नमेंट स्कूल उस हालत में थी नहीं, तो दे हैव टू सेंड टू इस्लामिक स्कूल्स। अब इस्लामिक स्कूल्स, मैं नहीं कह रही कि इस्लामिक स्कूल्स गलत है, लेकिन वहां में जो इस्लामिक स्कूल्स थी वो सारे अहले हदीस और जमात इस्लामी से फंडेड थी, और उस वजह से जो है गलत रेटोरिक बच्चों को सिखाया जा रहा था कि इंडिया दुश्मन है, ये है, वो है। मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ नुपुर। अहमदियास को लेके हम बहुत शोर मचाते हैं ना इंडियंस, और अहमदियास को मारा जा रहा है पाकिस्तान में। मेरे आंख से एक आंसू नहीं टपकेगा किसी भी अहमदिया के लिए, बिकॉज इट इज कर्मा कैचिंग ऑन टू देम। बताओ क्यों? पहला मुझे उनके नाम याद नहीं, गुलाम परवेज कुछ ऐसा नाम था उनका। ही वॉज अहमदिया जो पाकिस्तान से आया। पहली स्पीच जो कश्मीरियों के दिमाग में, उनके अंदर जो पॉइजन डाला गया हिंदूज के खिलाफ और बाकी इंडियंस के खिलाफ, वो उस गुलाम परवेज या जो भी उनका नाम था, वो अहमदिया थे कोई, वो उन्होंने किया। स्टार्ट चिंगारी वहां से हुई। जो राजा गुलाब सिंह थे उनके खिलाफ कश्मीरी को जो भड़काया उसने, उसने कहा कि हम पत्थर उठाएंगे, कुछ भी हटाएंगे, लेकिन इन हिंदुओं को यहां से भगाएंगे। जो उसने उनके दिमाग में डाला, एंड ये बोल के डाला कि जॉब्स क्यों सारे हिंदुओं को जा रहे हैं। सी, राजा गुलाब सिंह वॉज अ जस्ट एंड फेयर लीडर, और अगर उससे कोई गलती हो रही थी तो वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो बोल सकते थे उनको कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, आप इसको सीधा करो। लेकिन लड़ना लड़ाना, पत्थर उठाने का कल्चर उस बंदे ने शुरू किया। आज देखो अहमद याज की क्या हालत हो रही है पाकिस्तान में, आप खुद देख रहे हो। दिस इज कर्मा कैचिंग अप, दिस इज कर्मा कैचिंग अप। और फिर वहां उसके बाद तो वो फिर एक मतलब सिलसिला ही शुरू हो गया। हर कोई लीडर पाकिस्तान में जो आता था वो कश्मीरियों को पहले भड़काने का काम करता था, फिर अपनी आवाम की तरफ देखता था, चाहे वो बेनजीर भुट्टो या कोई भी। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो इस ग्रिप में आ गए, पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल ग्रिप में आ गए। जिस हमें अहमदिया नहीं समझ में जिस आई बात की। जिस अहमदिया की बात आप किए, कितने कौन सी ईयर की बात कर रहे थे? बहुत पुरानी बात है, 1930s की बात है ये। अच्छा। शायद जब, हाँ, तो इसीलिए यौम शुहादा कोई हम मनाते थे। हमारे हमारे पहला वाला जनरेशन कुछ यौम में कुछ था जो मनाते थे, यौम शुहादा, जिसमें हम उनके मरने का जो वहां पर जो ये लोग थे, जो इस अहमदिया की वजह से जो बरगलाए हुए लोग थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, जब उनको उनकी मौत का शोक हम मनाते हैं यौम शुहादा में। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब आप देखो कश्मीर के सियासतदान भी देखो कितनी जहरीली इन्होंने सियासत की। एक तरफ ये ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जब ये सीएम बनते हैं, दूसरी तरफ यौम शुहादा भी मनाने जाते हैं। वही यौम शुहादा जहां पे कश्मीरी हैड रिजन अगेंस्ट इंडियन रूलर और हिंदू रूलर।
तो आप देखो ये डबल गेम कैसे हमेशा से ये खेलते रहे हैं। इसी वजह से क्या है कि कश्मीरी भी इनको ट्रस्ट नहीं करते, और ना ही जो है रेस्ट ऑफ द इंडियंस इनको ट्रस्ट करते। जी। तो आज पहले जो आपने बोला कि स्कूल कर्फ्यू लग जाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, कॉलेज नहीं जा पाते थे, तो एजुकेशन बहुत सारा डिस्टर्ब होता था। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन। और मैं 2 बार एक्चुअली मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ कश्मीर से। एंड द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है कि उस मिट्टी में कुछ है डेफिनिटली। तो मैंने जो देखा, मैंने बहुत सारे सेशंस लिए वहाँ पे, बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स में गई। तो गर्ल्स जो बहुत सारे जगह पे मैंने एक भी गर्ल्स को बहुत सारे जगह पे विदाउट बुर्का नहीं देखा। बस मैं उनके आँखें देखे, मैं उनके बहुत खूबसूरत चेहरा देखना चाहती थी, बस अनफॉर्च्युनेटली बस आँखें देखे। तो उनके ऊपर कितना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलत अगेंस्ट में है या इसके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डेफिनिटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिलीजन, बट ये उनके ऊपर कितना थोपा जाता है, या वो लोग अपने आप बुर्का पहनती है। दिल से करते हैं, स्पिरिचुअल हब है वो। आपने सही कहा, स्पिरिचुअलिटी है उनके अंदर, वो दिल से करते हैं। एंड हिजाब में देयर इज नो प्रॉब्लम, आई फील, एज लॉन्ग एज यू जस्ट कवरिंग योर हेड। बुर्का में देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड बुर्के से मैं भी सख्त नफरत करती हूँ, बिकॉज बुर्का इज नॉट आवर कल्चर। हिजाब इज जस्ट अ साइन ऑफ मॉडेस्टी। हिजाब कोई भी कर सकता, मैं तो बोलती हूँ हिंदू लड़कियां भी कितने करती हैं हिजाब, घूंघट रखती है, हिजाब तो नहीं करती। तो हिजाब इज घूंघट की तरह ही होता है, साइन ऑफ मॉडेस्टी। ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, क्रिश्चियन नन्स भी तो करती है, कोई भी कर सकता है। हिजाब इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज द बुर्का, दैट इज एन अरब वर्जन, दैट इज एन अरब सेंस ऑफ ड्रेसिंग। एंड मुझे नहीं अच्छा लगता जब कहीं का भी कल्चर अरबाइज हो जाता है, जब उनका खुद का कोई ढंग का कल्चर नहीं, उनके कल्चर में ना कोई कलर है, उनके कल्चर में ना कोई म्यूजिक है, उनके कल्चर में ना कोई खूबसूरती है, कुछ है ही नहीं। तो उस कल्चर को, उस भद्दे कल्चर को अपनाने का मुझे सेंस समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरे कुरान पाक में तो ऐसे नहीं लिखा है कि भाई आपको अबाया में रहना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक काले कपड़ों में पहन के घूमना है। मुझे एक आयात दिखा दो जिसमें ऐसे लिखा है। उसमें तो बस लिखा है कि मॉडेस्टी अच्छी चीज होती है, इससे लड़कियां सेफ रह सकती हैं। इसमें इतना ही लिखा है कि सूर्य अल अज़हब में इतना ही लिखा है कि उसमें तो सूर्य अल अज़हब में तो लड़कों के लिए भी हिजाब लिखा है, पहले लड़कों के लिए लिखा है। लड़कों का हिजाब ये है कि कोई लड़की पास हो रही है, गैर लड़की, आपको नजरें नीची करनी है, ये लड़कों का हिजाब है। ठीक है ना। उसके बाद लड़कियों का लिखा है, वो भी इसलिए लिखा है इफ यू फील अनसेफ, अगर आपको अनसेफ लग रहा है। पहले तो ये लिखा है कि पहले तो ट्रांसपेरेंट कपड़े ना पहनो, और अपने छाती को ढक लिया करो कपड़ों से, इतना ही लिखा है। अब इसको, अगर आपको अनसेफ लग रहा है, तो अब इसको आप लोगों ने क्या बना दिया, मतलब लोगों ने क्या इसको तफसीलें कर करके क्या बना दिया, इसको बुर्का बाया, ये क्या मतलब अरब कल्चर को यहाँ लाने की साजिश क्यों। आउटसाइडर हम्म। कल्चर मैं कभी वेलकम नहीं करूंगी अपने इंडिया में। एंड हिजाब जो है खूबसूरत चीज है, और जो मेरी बहनें हैं कश्मीर में, वो दे बिलीव इन मॉडेस्टी, और मुझे लगता है कि उनको वो कर लेने देना चाहिए, क्योंकि नन्स भी हिजाब करती है। कई लड़कियां जो थोड़ी कंजर्वेटिव हिंदू फैमिलीज की, हरियाणा में, राजस्थान में, वो भी घूंघट करती है। अब मुझे वो खूबसूरत लगता है, इट इज देयर कल्चर। हाँ, अगर थोपा जा रहा है तो इट इज नॉट गुड, लेकिन अगर उनको दिल से करना है तो उसमें कुछ, इट इज हार्मलेस। क्योंकि आप फिर भी चेहरा देख सकते हो, कोई आइडेंटिटी ब्रीच नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी उससे। लेकिन मैंने जो हिजाब तो सुना यही है तक होता है। कि किसी गवर्नमेंट के रूल में ये पूरा अनाउंस किया गया था कि आप अगर बुर्का नहीं पहनोगे तो आपको एसिड दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ हाँ, था तो कश्मीर में? ऐसे देखिए, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बहुत थे ना कश्मीरी सोसाइटी में, कश्मीरी खुद उनसे तंग आए हुए थे इन एक्सट्रीमिस्ट से। और कश्मीरी हमेशा ये सोचते थे कि हमारी इतनी लैंड पे, हम जहां देखते हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस हमें दिखते हैं, या तो सीआरपीएफ दिखता है, या तो बीएसएफ वाला दिखता है, या तो आर्मी दिखती है। फिर ये रोकते क्यों नहीं इन एक्सट्रीमिस्ट को हमारी सोसाइटी में आने से। कश्मीरी मुस्लिम जो सेम मुस्लिम्स हैं, मतलब दिमाग के ठीक है, जो इन चीजों में, गलत चीजों में नहीं गए, वो तो यही सोचते थे। एक हमारे कश्मीरी पंडित तो वो यहाँ से जाने, मतलब उनको नहीं बचा सके, अब हम यहाँ रह गए, हमें नहीं बचा पा रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट अंदर कैसे आ जाते हैं। तो यही की हमेशा प्रॉब्लम रही है। इट्स नॉट दैट दे आर एंटी इंडिया, बट हमारी प्रॉब्लम यही, मतलब मैं अपनी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं की क्या मजबूरियां हो सकती सिक्योरिटी फोर्सेस की। हर घर में जाके तो नहीं चेक कर सकते ना कोई एक्सट्रीमिस्ट छुपा है कि नहीं छुपा, या कोई पाकिस्तान से। व्हाट हैज हैपेंड इज, नूपुर, पाकिस्तान से एक्सट्रीमिस्ट हैव इन्फिल्ट्रेटेड आवर सोसाइटी। सिर्फ वो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेट करके जंग नहीं कर रहे हैं, या प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो जवानों को शहीद करते हैं, उतना ही नहीं है। उससे भी ज्यादा उन्होंने डेंजरस गेम ये खेला कि
क्रॉस करके आ जाते हैं, सोसाइटी में रहने लगते हैं एज पार्ट ऑफ अस। अब उनके भी नाम मुसलमान है, तो दे गेट पास्ड ऑफ एज कश्मीरीज, रहने लगते हैं हमारे बीच। सैयद अली शाह गिलानी साहब की हिस्ट्री मतलब क्लियर नहीं है। इतना ही लोगों को पता है कि 1938 में लाहौर से पढ़ के आए, उससे पहले वो कहाँ थे, किसके घर पैदा हुए, उनके माँ बाप, किसी को कुछ पता ही नहीं। इतना बड़ा लीडर बन के बैठ गया वो कश्मीर में, और बार बार बोलता था पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन फिर वो सब कुछ झूठ निकला। सो दैट इज द पॉइंट कि कश्मीरी सोसाइटी भी इन्फिल्ट्रेट हो चुकी है इन एक्सट्रीमिस्ट से जो पार से आते हैं। जी। हम्म। तो आपको पर्सनली आपने आपने ज्यादातर एजुकेशन आप कश्मीर से मुंबई में किए हैं और वहां पे रह भी है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ दिया कि कश्मीर, जबकि तब 370 था और इतना यू नो इतना पीसफुल नहीं था, तो आपको घर से रोका नहीं गया वहां जाने और काम करने के लिए? कहाँ जाने के लिए? मुंबई? कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर में काम करने के लिए रोका गया, बहुत ज्यादा रोका गया, बहुत ज्यादा बोला गया कि हमने आपको अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है, आपको क्या जरूरत है वहां फिर से जाने की। लेकिन आई थॉट कि इट इज टाइम कि अपने स्टेट के लिए भी कुछ करना है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर पीपल। और मुझे पता है कि वहां पे लोग कंफ्यूज भी थे, डरे हुए भी थे जब 370 हटा था। मुझे पूरा भरोसा था कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वहां लोगों को नहीं पता था। वहां अभी तक पहले बात तो बुरहान, जैसे उन्होंने गलती से सैयद अली शाह गिलानी को अपना हीरो समझ लिया था, बाद में उन्हें पता चला कि ये तो चीट निकला। ठीक है ना, एक तो उसी तरह बुरहान वानी के साथ भी यही हुआ, उनको उसको अपना हीरो समझ बैठे थे। एक तो उसके मरने का गम उनको लग रहा था, ऊपर से 370 हटने का गम उनको लग रहा था। तो वो इस सिचुएशन में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया था सोसाइटी में, बहुत सारी ऐसी चीजें बढ़ गई। आई थॉट इट्स टाइम के कौम के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे ऐसे लग रहा था कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मेरी कौम एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्योंकि या तो ये डिप्रेशन से मर रहे हैं या ड्रग्स लेके मर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ श्योरिटी ही नहीं थी, कि अश्योरेंस ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। या तो ड्रग्स से, या तो डिप्रेशन से, या तो ये पत्थर उठाने चले थे, आईएसआई को हेल्प करने चले थे और उसकी वजह से इंडियन आर्मी की गोली से मर रहे थे, या ऐसे करके कहीं ना, या अगर कुछ ना भी करें बेचारे, अगर रोड भी क्रॉस करके जा रहे हैं, वहां पे क्रॉस फायरिंग अगर हो गई, मिलिटेंट्स और आर्मी के बीच में ऑपरेशन शुरू हो गया, वहां पे गोली लग के मर रहे हैं, कैसे ना कैसे मर ही रहे हैं। और अब मैं आपको हम्म। बता दूं, कश्मीर में ऐसे बहुत टाउन्स हैं, जैसे कुलगाम में रेडवानी, ऐसे बहुत टाउन्स हैं जहां पे आपको लोग ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि खत्म हो गई, वहां नस्लें खत्म हो गई है, इसी इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो मैंने सोचा अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी, आई कांट जस्ट लेट माई पीपल जस्ट डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। कश्मीरी पंडित्स तो बेचारे पहले ही निकल गए थे, अब कश्मीरी मुस्लिम भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो वो जगह किसके लिए बचे? वहां सिर्फ पहाड़ बचेंगे और कुछ नहीं। तो सो आपको लगता है सबकी कि साइड कश्मीरी पंडित वापस आएंगे? आपको क्या लगता है? आना चाहिए, और आने लगे हैं, जहां तक मुझे पता है आने लगे हैं वापस। मैंने कई कश्मीरी पंडित्स का वो लोग इंटरव्यू किया सेफ, एंड दे आर सेइंग फिर से सेफ अपने आप को फील करने बिल्कुल लगे सेफ, हैं या? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वहां रहने वाले कश्मीरी मुस्लिम सारे दिल से इंडियन हैं। तो जितने सेफ वो जम्मू में है या दिल्ली में, उतने ही सेफ अब कश्मीर में है। ओके। तो फिर आपके हिसाब से मतलब वो आने लगे हैं ना, दे कमिंग कमिंग बैक होम? यस यस, स्लोली स्लोली दे आर कमिंग बैक, एंड पीएम पैकेज के द्वारा उनको जॉब्स दिलाएंगी। हाँ, अभी भी अटैक्स होते हैं उनपे, इनफ्रीक्वेंट है, पहले से कंपेयर करो तो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है, बिकॉज पब्लिक इज नॉट सपोर्टिंग दीज अटैक्स। तो ये अटैक्स हम्म। इनफ्रीक्वेंट हो गई हैं, बहुत बहुत कम हो गई, लेकिन होती हैं। ऑल ऑफ अ सडन खबर आती है कि किसी बेचारे कश्मीरी पंडित को उसकी दुकान में मार दिया, या उसके गार्डन में मार दिया किसी ने पीछे से आके, फिर वो पकड़ा भी जाता है, फिर वो मारा भी जाता है पुलिस की गोली से। लेकिन कश्मीरी पंडित इन चीजों की वजह से डरते हैं आने से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो साइलेंटली आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं। जो उनकी जमीन वो छोड़ गए थे वहां पे रहने लगे हैं, चुपचाप से बिजनेस या दुकानें खोलने लगे हैं, दे आर कमिंग, दे आर रीसेटलिंग। अब ये चुपचाप से लाउड होना, इसके लिए शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज नोबडी ट्रस्ट एनीवन। तो वो ट्रस्ट इश्यूज हैं सबके बीच में वहां पे सोसाइटी में, कौन किसके लिए काम करता है, कौन क्या है, ये शायद हमें मरवा देगा जमीन के लिए, वो शायद हमें मरवा देगा जमीन के लिए या जॉब के लिए। ये चीजें, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ये जैसे ही खत्म हो जाएगी कुछ सालों में, मुझे लगता है इट विल बी एन ओपन सोसाइटी। आई डोंट थिंक कि वहां पे अब कोई प्रॉब्लम है ऐसी। अच्छा, जी। कश्मीर स्पेशली कश्मीर में मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। कश्मीर इज वेरी रिच स्टेट, रिच मतलब वहां पे मैंने हाँ। बाकी स्टेट में आप गरीबी देख सकते हो, कश्मीर में गरीबी बहुत
कम है, नहीं है, मैं बोलूंगी, कम। क्योंकि जितना मैं देख चुकी हूँ कश्मीर को, तो मतलब जी। कश्मीर तो पूरे देश को एक ये दे सकते हैं कि द कश्मीर आज से नहीं, हजारों साल से द रिच नॉट ओनली हाँ, इन ऑर्डर टू मनी, इट इज द कल्चर एंड एवरीथिंग, वहां पे क्या नहीं है, द लैंड ऑफ there is one गेडास आई वुड reason से। for that, Nupur. हाँ, there is one reason for that कि we don't have a population explosion in our state. Just one thing. मुझे लगता है कि resources deplete हो रही है इंडिया में. Now that's another topic altogether, but it's because of a huge population. हाँ, एक तरह से पॉपुलेशन से कि हमारा एक फोर्स भी स्ट्रांग होता है. इंडियंस का फोर्स पूरी दुनिया में स्ट्रांग हो रहा है. वी आर द बिगेस्ट, हम कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से वी आर आइड बाय ऑल द कंट्रीज. हर एक जो कंट्री, हर एक देश को हमारे साथ बना के रखना है, बिकॉज इंडियंस आर नॉट ओनली प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली बट ऑल्सो इन नंबर्स. तो बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव हो रही है बिकॉज ऑफ आवर बिग पॉपुलेशन, लेकिन बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हो रही है, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस. तो ये एक चीज है कि बिकॉज कश्मीर में पॉपुलेशन कम होने की वजह से दैट इज वन रीजन. कश्मीर में अनदर थिंग इज पॉपुलेशन नेचुरल और एक रिसोर्स. बात की कमी है, क्योंकि इंडिया में तो आप कश्मीरी कुड हैव कम टू इंडिया, मेनलैंड में आ सकते हैं, लेकिन हम लोग तो जाके नहीं रह सकते थे ना, दैट वाज वो भी 370 एक से रीजन. पहले। एब्सोल्युटली. वो भी एक रीजन है, वो भी एक रीजन है. लेकिन मैं आपको बता दूं नुपुर, हर एक जगह इंडिया में जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है, वहां पर हम्म आर्टिकल 371 जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो वहां की लैंड प्रोटेक्शन राइट्स देती हैं वहां के नेटिव्स को, कि वहां की लैंड सिर्फ नेटिव्स के लिए रहे और ये सब ना. तो ये हम्म जैसे नागालैंड में भी है, गोवा में भी है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है कि नेटिव्स को लैंड पे फर्स्ट अधिकार होना चाहिए. लेकिन गलत इसमें है कि जस्ट बिकॉज कोई नॉन नेटिव वहां आ गया, गोवा में आप नहीं देखोगे कि कोई नॉन नेटिव आ गया और किसी गोवन के साथ पार्टनरशिप करके अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको वहां पे मारा जाता है. अनलेस एंड अनटिल वो कोई ड्रग्स वग्स में मुलविस मुब्तला हो, कोई ड्रग गैंग के साथ उसकी दुश्मनी है, वो अलग चीज है. बट आई एम सेइंग कि गोवा में किसी नॉन लोकल लेबरर को मारा नहीं जाता. तो ये चीज है कि कश्मीर में ये रुकना चाहिए. जस्ट बिकॉज कोई बाहर से आता है, काम करने के लिए आता है, या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, तो उसको खत्म कर देना, ये कैसे यहाँ सेटल हो सकता है, ये हमारी लैंड है, हम्म ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये. बट ज्यादातर अगर मैं बोलूँ ये पाकिस्तानी टाइप माइंडसेट, ये उन्हीं लोगों का है जो एक टाइम पे JKLF या सैयद अली शाह साहब के फॉलोअर्स थे. हम्म। जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनका माइंडसेट रखते हैं, ये उनका दिमाग है कि दे आर द हम्म वंस टारगेटिंग. कोई भी अगर बाहर से आता है, ये रेगुलर जो कश्मीरी है वो इस तरह से नहीं सोचता, क्योंकि हर कश्मीरी को पता है भाई हम बाहर जाके पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो जाहिर बात है ये भी यहाँ आ सकते हैं. दैट इज अ फैक्ट. बट ये चीज जो है ना, फिल्टरिंग की जरूरत है हमारी सोसाइटी को, कश्मीरी सोसाइटी को, कि भाई फिल्टर करके निकालो ऐसे लोगों को ट्रू जो सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट होकर आए. ट्रू, जी. वेरी ट्रू। याना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे जो दर्शक है उसको भी बहुत कुछ सुनने को मिला, एंड द ट्रूथ, स्पेशली जब कश्मीर से कोई बोले तो उनको हम लोग बहुत कुछ कम जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे वजह है उसके, लेकिन कश्मीर की अगर कश्मीरी के मुंह से सुने तो पीपल विल बी मोर कन्विंस्ड। तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शक लोगों को इतना नॉलेज देने के लिए अबाउट कश्मीर, एंड वुड लव टू हैव यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपके आपके द्वारा हम कश्मीर को और भी अच्छी तरह से दुनिया में फैलाना चाहेंगे। Sure, Nupur. Thank you so much for having me on your show once again. थैंक यू सो मच, नमस्ते, एंड इन जापानीज हम लोग Thank बोलते हैं you. आरिगातो गोजाइमास, सो मतलब धन्यवाद होते हैं। Arigato gozaimasu. आरिगातो गोजाइमास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.